Do you ever feel like, oh my god, he loves me, but he's not able to give me what I deserve? Or I know that she loves me, but she's not loving me the way I am supposed to be loved? Babe, that's avoidant attachment. Hi, I'm Shraddha Chakrabarti. This is something very new for me as well. This is my first ever video of my series called Pep Talks. And we're going to talk about avoidant attachment. And it's not, yeah, I'm a girl, so I'm going to talk, from the perspective of a girl, but this video is also for the guys who want to learn or, know a little bit about avoidant attachment. So let's get into it. The first thing that we have is what exactly is avoidant attachment, right? Let us get into the very, depth and understand what it really is, first of all. Avoidant attachment basically is when someone craves love but is, gets too overwhelmed by the feeling of being close to someone, if you know what I mean. Like, aisa nahi hai ki they don't want someone to love them or they don't want to love someone, but the idea of getting close to someone freaks them out. उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनसे क्लोज हो जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं एंड वो फियर होता है कि किसी के साथ क्लोज हो गए, सो यू हैव टू be answerable or have an obligation towards them, so they don't want that. इसके बहुत रूट कॉजेज होते हैं. बेसिकली इट्स एनग्रेव्ड इन द चाइल्डहुड. बहुत होता है कि the parents are avoidantly attached, like they don't give attention, they don't pay attention to the child's emotion that much. उनको पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि भाई, you have to be independent, you have to be strong, emotions have got no, absolutely no value in the family. And इमोशनली फील करने से पहले ही उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि भाई, यू हैव टू बी अलोन, इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, लव समवन, एंड उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है लाइफ में. देन अब ये तो चलो हो गया चाइल्डहुड, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि समवन इज अवॉइडेंटली अटैच्ड टू यू? सबसे पहले तो वो बंदा आपसे स्पेस मांगेगा हर चीज में, बंदा हो या बंदी. दैट पर्सन इज गोना आस्क यू फॉर स्पेस एवरी सिंगल टाइम, गुड बैड अगली, छोटी सी छोटी चीज जिसमें स्पेस लेने का लिटरली कोई तुक भी नहीं होता, उसमें वो बंदा आपसे स्पेस मांगेगा कि आई नीड स्पेस. They will refrain from having a conversation, they will not want to address the issue in the first place. वो बंदा आपसे बैठ के बात तक नहीं करेगा, आपको ऑनेस्टली खबर भी नहीं होगी कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम. वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ही उस चीज से विड्रॉ कर लेंगे, अपने दिमाग में एक डिसीजन बना लेंगे. एंड द फनीएस्ट पार्ट इज वो आपको वो डिसीजन बताएंगे भी नहीं टिल द टाइम यू फोर्स इट आउट ऑफ देम. मतलब तुम्हें पता लग जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन एंड यू विल हैव टू फकिंग सक इट आउट ऑफ देम कि व्हाट इज रॉन्ग, टेल मी what's going on, I know there's something going on. And then they're gonna and they're not even gonna tell you the problem, they're just gonna tell you the decision based off the problem they had self created in their head. Now the the main problem for my girlies who are dating guys who are avoidantly attached, I got you. I was very close to a certain someone, like extremely close. And मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी उस इंसान से. Now the problem was that that person was very avoidantly attached. Okay. एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? When a person knows that I am with someone, be it a friendship, be it a relationship, what I personally do is that अगर मुझे किसी बंदे से प्रॉब्लम होती है, आई एड्रेस इट फेस टू फेस. आई डोंट केयर कि उसका आउटकम क्या होने वाला है. वी मे नेवर टॉक अगेन, वी मे सॉर्ट आउट थिंग्स, बट आई डोंट कीप इट इन मी. नॉर्मल इंसान यही करता है कि अगर प्रॉब्लम होती है तो पहले एड्रेस करते हैं बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन. बट पीपल हु आर अवॉइडेंटली अटैच्ड, दे डोंट. He didn't talk to me about whatever he used to face. Ki Shraddha, I am feeling this, and I don't know what to do. I don't know how to talk to you about it. I don't know what conclusion to come to. मुझे ये फिगर आउट करना पड़ता था कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग
एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। देन ही यूज्ड टू टेल मी व्हाट ही इज ऑलरेडी थॉट अबाउट, मतलब अबाउट द डिसीजन ही इज ऑलरेडी मेड। मतलब वो मुझे ये बताता था कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा था एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा या ऐसा हो पाएगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे कोई हेड्स अप नहीं मिलता था। I would not know कि this is something that is going on in that person's life and this is something that he has been thinking. एंड मेरा हमेशा यही होता था कि एटलीस्ट मुझसे बात तो कर, एटलीस्ट समझ। एंड दीज पीपल विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट लिसन टू यू, स्पेशली अगर आप एक डिस्टेंस में हो। सी, it makes a lot of difference if you're sitting in front of someone, you're talking to them face to face, or you are talking to them on phone. It makes a lot of difference. सामने से आप बैठ के एक इंसान को समझाते हो तो उसको दिखता है कि ठीक है, एक कम्युनिकेशन है, एक दिख रहा है वो इंसान की हाँ सामने से बात कर रहे हैं, तो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्रेशंस होता है, विजुअल क्यूज होते हैं, उससे समझ आता है कि इस बंदे को दिक्कत हो रही है और वॉट एवर इज हैपनिंग। एक्सक्यूज मी। Yeah, your girl needs to be hydrated. Okay, where were we? Yes, कि सामने बैठ के इंसान को दिखता है कि अच्छा प्रॉब्लम हो रही है, बट कॉल पे अगर होता है ना, और एवरी स्मॉल थिंग जो उनके फेवर में काम करती है ना, दे यूज इट। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, दूर से बैठ के क्या ही हो सकता है, फोन काट दो, ब्लॉक कर दो, दिस। तो मैं इस वजह से आई यूज टू डाउट माई सेल्फ, आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ, इज देयर समथिंग दैट आई एम डूइंग, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन मी, डज ही नॉट लव मी? लेट मी टेल यू, ही डिड लव मी। इमोशंस उसमें सारे थे, सारे। बट छोटी सी इनकन्वीनियंस होती थी ना, ही यूज टू प्रोजेक्ट इट ऑन मी विदाउट इवन टॉकिंग टू मी अबाउट इट। सो दैट इज जस्ट हाउ ही इज। बिकॉज बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट रहा है, बचपन से इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है, बात नहीं की है किसी चीज़ के बारे में। एंड लड़कों में जनरली थोड़ा ज़्यादा होता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट कुछ लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है, टू द पॉइंट कि एक बाउंड्री नहीं सेट कर पाते हैं वो, कि अच्छा अब अगर नहीं बोला तो चीज़ें सच में खराब हो जाएंगी। और अवॉइडेंटली अटैच्ड लोगों में ये ज़्यादा होता है। एंड अब लेट्स गेट टू, if you are the one who is avoidantly attached, to my girls and my guys who are watching my video, to improve, to get out of that avoidant attachment style and get into a secure attachment style। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ बहुत बिना शुगर कोट करे, कि अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आपको अगर कोई चीज चेंज करनी होती है ना, तो उसमें आपको अनईजी लगेगा ही, आपको वो चीज़ करने में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि अगर बिना अनकंफर्टेबल हुए, बिना मेहनत करे कोई चीज़ इंसान कर पाता, तो पीपल वुड हैव बीन, एवरीबडी वुड हैव बीन सक्सेसफुल in today's generation. But that's not how it is. Half of the people don't want to get out of their comfort zone because they think कि चेंज होके क्या करना है, ऐसे ही तो अच्छा है, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, इट्स नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। पहली बात तो एक्नॉलेज करो कि आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हो, ठीक है? बैठो अपने साथ, अकेले बैठो। पहली बात तो सप्रेस करना बंद करो। यू नीड टू स्टॉप कैमोफ्लेजिंग योर इमोशंस बाय और सप्रेसिंग देम बाय using bad coping mechanisms, like getting into substance like drinking, smoking, always being surrounded by people, and having a bad company, people who are avoidantly attached in themselves, who don't know, who don't take accountability of their emotions or themselves. Stay away from such people. अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज करो, अपनी कंफर्ट स्पेस से निकलो, सिट डाउन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील, गुड बैड अगली, सिट डाउन एंड स्टार्ट टॉकिंग। किसी भी डिसीजन पे आने से पहले आप उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में बात करो उस इंसान से, या किसी से भी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी इंसान से, उस इंसान से बात नहीं भी करनी है, किसी और से तो कर लो पहले, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ले लो, बट प्रेफरेबली उस इंसान से करो जिससे प्रॉब्लम होती है। बट एटलीस्ट लर्न टू स्टार्ट टॉकिंग, ओपन अप। बहुत टफ होता है, बट यू आर गोना डू सो मच बेटर, इट्स गोना बी सो नाइस, एंड यू विल फील लाइक यू हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड। क्योंकि अवॉइडेंटली अटैच्ड लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं भाई, बिकॉज ऑब्वियसली इमोशंस तो अंदर ही है ना, बाहर तो कुछ निकला ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर इट कीप्स ईटिंग देम।
तो खुश तो वो भी नहीं है. इफ तुम खुश नहीं हो तो देयर इज नो पॉइंट ना. अवॉइडेंटली अटैच होके तुमने क्या ही उखाड़ लिया. बट इफ यू चेंज इट्स गोना बी सो मच बेटर फॉर यू. एंड फॉर माई गर्लीज, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट यू कैन नॉट फिक्स avoidantly attached people. I get it. I get it. You think you can protect them. You think you can mold yourself into being the perfect one for them कि ठीक है अगर ये नहीं कर रहा है तो मैं ढल जाती हूँ. नहीं होता है. वो इंसान कोई भी बहाना ढूंढेगा आपसे दूर जाने के लिए. That person is going to find the most stupid excuse and he'll not listen to you. He or she both. They're not going to listen to you. You need to start loving yourself to the point कि any other person is just an addition to your life. That person is not your whole life. You have to set boundaries. एक emotional intelligence डेवलप करनी बहुत necessary है अपने अंदर कि you can different. एक मिनट. हाँ, also there's a difference between someone who is avoidantly attached and someone who is using you. ठीक है. There's a very fine line. तभी मैंने ये वीडियो बनाई है सो दैट यू रियलाइज कि एक बंदा जो तुम्हें यूज कर रहा है और एक बंदा जो जेन्युइनली अवॉइडेंटली अटैच्ड है, जो समवन हु इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तुम ये फिगर आउट कर पाओ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. ऑल्सो अच्छा हाँ, अनदर थिंग कि you can understand a person, you can love that person and still leave. Okay, just because you love that person doesn't mean you can save them. Someone who doesn't want to be saved, no matter what you do, तुम अपना गला काट के दे दो, that you cannot save that person if that person doesn't want to be saved, if that person doesn't want to be helped in the first place. So you're not a bad person for prioritizing yourself after giving your all, because I'm sure कि सब लोग अपना 100% देते हैं एक पॉइंट तक, उसके बाद ही उनका एक सैचुरेशन पॉइंट हिट होता है कि अब तो नहीं हो रहा है भाई. तो yeah, you don't have to be a bad person. If you leave someone who's avoidantly attached, they can get help. There's a lot of help. Therapy hai, talking to your friends, professional help. Oh my god, I am studying psychology. I am telling you, it helps a lot, a lot. All right, that's it. I don't have any other advice as far as about, मतलब I'll make more videos. Don't worry about it. Don't worry about it. मैं बनाऊंगी videos, but अभी for this much, like for this video, I only have this much for you. I won't bore you. And I hope that you really like this video. I know कि मैं कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से, like an older sister to the younger girls and the guys, even older ones. I am not gonna say कि छोटे लोगों से बड़े लोग सीख नहीं सकते. No, that's not my funda. I hope कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो. You took something from this video, and if you did, please like, share, comment, subscribe. Please, my comment box is open for suggestions. I am very new to this. You can tell me about my flaws. You can give me suggestions ki please make video on this, please make video on that. I am gonna do it. And I would just like to conclude by saying that avoidant attachment is not permanent. Healing is possible, and everyone deserves love that is warm, consistent, and calm. I'll be back with another video with episode 2. Comment down below what else you think I should cover, and I'll see you guys.